morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is ledger. This is the most important chapter for the class 11th accountant, class 11th commerce students. This is the second step and this is the most important chapter from your accounting point of view. Okay, so let's start. Ledger, L-E-D-Z-E-R. In the previous lecture we have seen some special journal entries. You can see, if you want to see, you can go in the playlist of my YouTube channel and you can see the class under playlist class 11th accounts. You will get all the videos relating to journal entries. My dear students, the chapter number 9, that is ledger. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ledger meaning, needs, format, rules of posting and classifications, calculation of balances. Okay, these all 5 chapters and then chapter finish. Okay, so first of all we will see meaning. क्या होता है? Before telling you what is ledger, as we are knowing the accounting process means transactions. After transactions we record where first time journal entry, journal, then we classify these transactions. Whatever we have recorded in the journal, we will classify it under the ledger. Whatever we will study, okay, and then classifications, we prepare the trial balance. Okay, for the collection of summary of all ledger balances under trial balance. Okay, after trial balance we prepare final account. For getting our net profit, net loss, we prepare final account and then balance sheet. This is the accounting cycles. We record the transaction in journal and then we prepare ledger. From journal we prepare ledger. मतलब जर्नल से क्या बनेगा? लेजर, लेजर से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट. Ready you all? So what I am saying, what I want to say these all are the accounting cycles. These chapters all are the accounting cycle. Okay, so let's start ledger. Ledger means ledger contains or classified where all the transactions we record on a permanently basis. उसको हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं. मतलब जर्नल में जो हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल क्या होती है? जर्नल क्या होता है? जर्नल, इसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ओके, लेजर क्या कहेंगे? प्रिंसिपल बुक. Books of original entry means where we record the transaction firstly, and principal book means सारे transactions जहां एक जगह मिल जाते हैं. मतलब all type of transactions we will get ledger. ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल बुक. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जर्नल और लेजर में. अच्छा, दूसरी चीज, हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को बिना जर्नल एंट्री किए लेजर में रिकॉर्ड कर सकते हैं. विदाउट पासिंग जर्नल एंट्रीज वी कैन रिकॉर्ड इन द लेजर डायरेक्टली. ओके, सो इफ you will be an expert, then there is no need to pass journal entry. Okay, you will directly pass through under the ledger account. Clear?
बट फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग how transactions will be recorded, we need to prepare journal. Okay, my dear friends. So this is the basic difference between journal and ledger. Ledger क्या होता है? खाता बुक होता है. Ledger का मतलब क्या होता है? खाता बही. ओके, खाते जहां सारे अकाउंट्स हम क्या करते हैं, खोल के रखते हैं और एक अकाउंट से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, उस खाते में रिकॉर्ड करके रखते हैं. अच्छा, ये हो गया मीनिंग की बात आ गया. नीड्स, इसकी नीड्स क्या है, क्यों इसकी जरूरत है बनाने की, क्यों हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, जर्नल तक ही क्यों ये चीजें सीमित नहीं रह जाती, वाई वी प्रिपेयर लेजर. तो सबसे बड़ी बात क्या है इसको प्रिपेयर करने की बात, जैसे बिजनेस में कैश आता है, कैश क्या होता है, इन बिजनेस. ओके, कैश आया, कैश गया, कैश इन, कैश आउट. ओके, हम ये कैसे जानेंगे कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के, जैसे मान लीजिए 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल में कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ. कैश का एग्जैक्ट बैलेंस हमारे बिजनेस में क्या है, फॉर द नोइंग द बैलेंसेस ऑफ कैश अकाउंट या एनी टाइप ऑफ अकाउंट, किसी भी खाते की हमको बैलेंस जब जानने की जरूरत होती है तो हम क्या बनाते हैं, हमको लेजर बनाने की जरूरत पड़ती है. दूसरी चीज, कौन कितना किसको पैसा देना है ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब तक मैं लेजर नहीं बनाऊंगा तब तक मुझे अपने क्रेडिटर के बारे में नहीं पता चल पाएगा. किससे मुझे कितना पैसा लेना है, कौन मेरा डेटर है, ठीक है ना, किससे मुझे कितना पैसा लेना है, किस डेटर से मेरा कितना बैलेंस बचा हुआ किस डेटर के पास. इन चीजों को जानने के लिए मुझे लेजर की आवश्यकता पड़ती है, लेजर बनाने की नीड होती है. नेक्स्ट, हम अपने बिजनेस में कितने एक स्पेसिफिक टाइम में 1 साल, 2 साल या फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में हम हाउ मच वी आर सेलिंग एंड हाउ मच वी आर परचेजिंग गुड्स, बाइंग गुड्स, ये हम कैसे जानेंगे. तो जब तक हम अपने उस अकाउंट का, उस स्पेसिफिक अकाउंट को प्रिपेयर करके उसका बैलेंस नहीं फाइंड आउट करेंगे तो तब तक हम क्या आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपने बैलेंसेस को हम नहीं जान पाएंगे. तो लेजर की जरूरत इन्हीं कारणों से पड़ती है. क्या, हमें एग्जैक्ट बैलेंस हमको जानने की जरूरत पड़ती है कि हाँ मेरे इस अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, इस अकाउंट में हम प्लस में है कि माइनस में. अगर मान लीजिए हम सपोज कोई स्पेसिफिक पर्सन राम है, अगर हम उससे बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो हाउ वुड वी नो, कैसे हम जानेंगे, हम कैसे जानेंगे, हम जब तक राम का अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगे कि हमने राम को कितने का सामान बेचा है, कितने का सामान खरीदा उससे, ठीक है ना. तो राम के अकाउंट के बैलेंस को जानने के लिए हमें लेजर अकाउंट बनाना ही पड़ेगा और लेजर मस्ट है बनाना, बिना इसके आप अकाउंट्स में आगे नहीं बढ़ सकते. तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको सीखना, ठीक है ना. तो लेजर की इंपॉर्टेंस है, नीड है, ये आपने समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, नीड समझ लिया. अब आते हैं फॉर्मेट की बारी. फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट. अब जैसे हम अपने बिजनेस में, हम अपने अकाउंट्स में हर चीज का एड्रेस होता है. आपने देखा होगा जर्नल का भी एड्रेस है. जर्नल के एड्रेस को हम जर्नल में मतलब कैसे फॉर्मेट बनाते हैं, देन हाउ वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, फॉर्मेट ऑफ जर्नल. सो एज वी विल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर, फॉर्मेट ऑफ लेजर कैसे बनेगा देख लीजिए. सबसे पहले अपनी कॉपी को ऐसे से बांट देंगे आधे आधे पन्ने में, ठीक है ना. अच्छा, फिर ये सेम चीजें यहां इतना ही कॉलम ऐसे रहेंगे.
ठीक है, तो ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहां सबसे पहला कॉलम क्या रहेगा, डेट, डेट है, डेट का कॉलम ये, सॉरी, डेट, पर्टिकुलर, यहां क्या रहेगा, जीएफ, लेजर में क्या था, एलएफ, यहां क्या रहेगा, जेएफ, जनरल फोलियो नंबर, यहां रहेगा अमाउंट, अमाउंट डेबिट, यहां क्या रहेगा, फिर वही सेम चीजें, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ और अमाउंट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट क्रेडिट, ये है लेजर का फॉर्मेट। ओके, कितने कॉलम रहे, 8 कॉलम है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट डेबिट साइड, डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट क्रेडिट, ये हुआ फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। इसी फॉर्मेट में क्या बनेगा, कोई भी अकाउंट हम बनाएंगे। क्लियर, ये है फॉर्मेट। तो इस चीजों को जान लीजिए क्या, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट क्रेडिट, मतलब एक पेज बने, एक पेज पे, सिंगल पेज पे आप उसको हाफ कर देंगे, 4 कॉलम डेबिट साइड में, 4 कॉलम क्रेडिट साइड में। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, चौथा अमाउंट डेबिट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है ना, ये 8 कॉलम बनेंगे टोटल आपके लेजर अकाउंट में। ओके, ऐसे आप इस चीज को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ फॉर्मेट। अब रूल ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के कुछ रूल्स हैं, कैसे हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करेंगे। अब जैसे आपने बहुत सारी जनरल एंट्री अपनी बनाई होंगी, लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस यू हैव डन इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लियर ना, आपने किया होगा, इस चीज को आप समझ गए। अच्छा, रूल्स ऑफ पोस्टिंग में क्या चीजें ध्यान देनी है, कैसे आप यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे, जो हम जैसे जर्नल से जो ट्रांजैक्शन उठा के यहाँ पोस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं उसको क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। मीन्स whatever transaction, whatever journal entry we will mention under the ledger, उसको क्या कहते हैं, what we will say, उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए बिजनेस में कैश अकाउंट होता है, आप सभी लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, अकाउंट्स की बुक लेंगे, ठीक है, और कैसे पोस्टिंग होता है इस चीज को हम देखेंगे, ठीक है ना। तो आप जर्नल एंट्री के फर्स्ट इलस्ट्रेशन को ले लीजिए, मैं यहाँ पे उसका आपको पोस्टिंग करके बताऊंगा कैसे इस चीज को पोस्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन, जर्नल एंट्री के फर्स्ट इलस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, आप जाएंगे जर्नल एंट्री की फर्स्ट इलस्ट्रेशन को, कैसे इसकी पोस्टिंग आप करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास जैसे ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांजेक्शन्स क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ जर्नल एंट्री। अब इस सारी जर्नल एंट्री को मुझे पोस्टिंग करना है, तो सबसे पहले मैं कैश अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बना रहा हूं, क्या मुझे कैश का बैलेंस जानना है, तो मैं ऊपर लिख दूंगा क्या, कैश अकाउंट। जो भी अकाउंट बनाऊंगा सबसे पहले क्या रूल क्या है, उसका नाम लिख दूंगा, नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक है, उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पे कैश अकाउंट, क्लियर। अच्छा, अकाउंट नाम लिखने के बाद ये फॉर्मेट बना लूंगा पूरा कॉपी पे, 8 कॉलम, डेट, क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं, जिस डेट की ट्रांजेक्शन है उस डेट का मेंशन करेंगे, पर्टिकुलर वो पोस्टिंग होगी, जेएफ जर्नल, कहां हमने इसका जर्नल बनाया हुआ है, वो जर्नल फोलियो नंबर, जैसे मैंने बताया था लेजर फोलियो नंबर। अब की कोई ट्रांजेक्शन है उसका हम जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहां जर्नल एंट्री बनाए हुए हैं, कहां से इस ट्रांजेक्शन को लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो उस जो जर्नल फोलियो नंबर, वो नंबर, अमाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट डेबिट साइड में जाएगा वो इधर, फिर डेट, पर्टिकुलर, फिर एज इट इज हम क्रेडिट साइड में करेंगे। तो पहला रूल क्या है, कैश अकाउंट
नेम ऑफ द अकाउंट, पहले हम नाम लिखेंगे, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ध्यान रखिएगा, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है, वट एवर अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग, जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं, जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं, मतलब जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं, उस अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्लियर ना। उसके अपोजिट एंट्री को हम पोस्ट करेंगे, अपोजिट को ही पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। हम क्या मैंने बोला कि वट एवर अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग वी विल नॉट राइट द नेम ऑफ अकाउंट ऑफ दैट अकाउंट, क्लियर ना। मीन्स हम उस अकाउंट का नाम उस लेजर अकाउंट में हम मेंशन नहीं करेंगे, उसके अपोजिट एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। अभी मैं इस चीज को समझाऊंगा, ठीक है ना। तीसरा, ये डेबिट साइड होता है एस, और ये क्रेडिट साइड होता है। क्या होता है, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। दाहिने ऐसे आप देखेंगे सामने, या फिर ऐसे आप घूमेंगे तो बाएं साइड क्रेडिट हो गया, राइट साइड डेबिट हो गया। इस चीज को आप समझ लीजिए, क्या दिस विल बी डेबिट साइड एंड इट विल बी क्रेडिट साइड, ओके। अच्छा, ये हो गया डेबिट क्रेडिट। अब ये थर्ड रूल हो गया। अच्छा, चौथा थर्ड रूल हो गया। थर्ड, डेबिट साइड में हम टू लिखते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को टू, और जब पोस्टिंग करते हैं और यहां क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टू और बाई का प्रयोग करते हैं। क्रेडिट साइड में बाई एंड डेबिट साइड में टू, डेबिट साइड में टू, क्रेडिट साइड में बाई, इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, बिफोर राइटिंग द ट्रांजेक्शंस, ओके। अब जैसे मेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन को मैं ले रहा हूं जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 5 के पहले एग्जाम्पल को, मैं यहाँ पे कैश अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगा कैसे हम इस चीज को पोस्टिंग कर रहे हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। सो देखिए, सबसे पहली ट्रांजेक्शन था, पहला ट्रांजेक्शन क्या था, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ₹50,000। सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश ₹50,000। एक सियाराम है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 50,000 से। एंट्री क्या बनी, फर्स्ट एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सबको क्लियर है। अब हम यहां पे बना रहे हैं क्या, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो अभी मैंने क्या बताया, जो भी अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है, जहां जहां कैश आएगा उसी एंट्री को हम लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैंने हम परचेज किया, राम से गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री बनी, इसमें कैश आया, इस ट्रांजेक्शन को हम नहीं लेंगे। क्यों, अगर हमने मेंशन किया होता, जैसे क्या, हमने गुड्स परचेज किया, कैश में परचेज किया, परचेज गुड्स विद द कैश ₹10,000, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री लेंगे। कैश आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आया, हम इस एंट्री को मेंशन किया और इस एंट्री को हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, राम से परचेज किया, क्या क्रेडिट परचेज किया, दैट एंट्री विल नॉट रिकॉर्ड अंडर द बुक्स ऑफ अकाउंट। गेटिंग वो वाला, अच्छा, ओके। तो हम कैसे पोस्टिंग करेंगे, ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनी 1 जनवरी को, कितने से, 50,000 से। अब देखिए क्या होगा, एंट्री होगी 1 जनवरी, यहां पे मैंने डेट डाल दिया। टू, ऊपर वाले की पोस्टिंग करेंगे नहीं, हम इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो हम अपोजिट वाले की पोस्टिंग करते हैं, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल लिख दिया, कितना, 50,000 अमाउंट लिख दिया। यहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। चैप्टर ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश, आया क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने गुड्स परचेज किया, क्या, कैश परचेज किया। एंट्री क्या होगी, सामान आ रहा है, परचेज कर रहा है, परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश जा रहा है मेरे बिजनेस से, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या, कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल है क्या, रियल अकाउंट का, तो टू कैश परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकेंड एंट्री क्या होगी, सेकेंड एंट्री होगी क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट कैश, ठीक है ना। एंट्री बनी कितने की, हमने परचेज किया है 20,000 की, ठीक है ना। अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी, कैसे हम इसको पोस्टिंग करेंगे, कैसे पोस्टिंग करेंगे, देखिए ध्यान से, कैश नीचे आया हुआ है,
टू कैश, नीचे आया हुआ है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अपोजिट वाले की पोस्टिंग करेंगे, मतलब वो क्रेडिट साइड पे बाई परचेजेस, कितने डेट को, 2 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल यहां पे और 2 अप्रैल यहां पे, बाई परचेजेस कितना 20,000, लिख लिया, ये हो गया बाई परचेजेस 20,000। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे, टू सुभाष, सुभाष इज अ पर्सनल अकाउंट, सुभाष गुड्स दे रहा है ना, तो उसका हम नाम लिख देंगे टू सुभाष, क्लियर ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ओके। तो यहां पे कैश आया, कैश अकाउंट बना रहे हैं, हाँ अगर यही हम परचेजेस अकाउंट बनाते तब यहाँ पे इसकी मेंशन होता, लेकिन हम यहाँ क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज मेंशन नहीं होगा, वो एंट्री मेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कैश, इस एंट्री में कोई भी कैश का टर्म नहीं है। नेक्स्ट एंट्री, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, हमने फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा, एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्यों, फर्नीचर मेरा एसेट है तो फर्नीचर का नाम लिखेंगे बकायदा, पर फर्नीचर का हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्लियर ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, मेरी एंट्री क्या बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा, पोस्टिंग क्या होगी, एंट्री बनी फर्नीचर डेबिट टू कैश, कितना 6,000 अमाउंट है, 6,000, ओके। फर्नीचर डेबिट टू कैश, कैश नीचे आया हुआ, फर्नीचर ऊपर आया हुआ, ध्यान से देखिएगा, बाई फर्नीचर कितना 6,000, क्लियर, बाई फर्नीचर, ऊपर वाले की पोस्टिंग की है, ऊपर वाले की पोस्टिंग कर दी है, ओके। फिर ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री बनी है, गुड सोल्ड इन कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, 13,000 का सामान बेच दिया, एंट्री क्या बनी, ध्यान से देखिएगा, एंट्री क्या बनी, गुड सोल्ड फॉर कैश, मतलब पैसा आया सामान गया, तो कैश आया, कैश का मतलब कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना 13,000, ओके। अब देखिए पोस्टिंग क्या होगी, इसकी लेजर में पोस्टिंग क्या होगी, कैश अकाउंट बना रहे हैं, टू सेल्स, कितना 13,000। अब देख रहे होंगे आपको पैसा आ रहा है इधर और पैसा इधर से जा रहा है, क्लियर ना, कैश अकाउंट बना रहे हैं, मतलब वट एवर वी आर रिसीविंग इन कैश, तो इनकमिंग साइड एंड आउटगोइंग साइड, पैसा इधर आ रहा है और पैसा इधर से जा रहा है, क्लियर ना। तो एट लास्ट में जो हम ऐसे ही हम करके जाएंगे और लास्ट में हम अपना बैलेंस पता चलेंगे कितना बैलेंस कैश का है एट द एंड ऑफ द मंथ, ओके। फिर आप देखते हैं ट्रांजेक्शन, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है क्या, सोल्ड गुड्स टू महेश को सामान बेचा, फिर एंट्री क्या हुई, महेश डेबिट टू सेल्स, कितना है, कितने का सामान बेचा, 15,000 का, ठीक है ना। जब 15,000 का सामान बेचा तो यहाँ पे कैश आया है, इस एंट्री में कैश नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे, इस एंट्री को हम छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट, जहां कैश आएगा उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्या है, हमने सुभाष पेड कैश टू सुभाष को पैसे का पेमेंट किया, कितना 8,000, कितना सुभाष को पैसा दिया, सुभाष को पेमेंट किया, तो सुभाष इज अ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सुभाष रिसीव कर रहा है, तो सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 8,000, ओके। एंट्री क्या बनेगी, बाई सुभाष 8,000, रेडी हो वाला। नेक्स्ट, फिर पैसा महेश से आया, महेश से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है 10,000, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश रिसीव फ्रॉम महेश, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कितना है 10,000 एंट्री बन गई। अब पोस्टिंग क्या हो जाएगी, टू महेश, यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा, जो भी डेट होगा लाइन से डालते जाएगा, मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो डेट वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं। फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, नेक्स्ट एंट्री क्या बनी है, हमने गुड सामान फिर खरीदा, किससे, रवि से खरीदा है और कैश में खरीदा है,
तो एंट्री बनेगी क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी बाई परचेजेस कितना 7500। एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई परचेजेस अपोजिट वाली की एंट्री करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे परचेजेस डेबिट टू कैश, परचेजेस डेबिट टू कैश, यानी ये अपोजिट वाले की पोस्टिंग करेंगे। देख लीजिए बाई परचेजेस यहाँ पे 7500। ओके, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, कैश आया नहीं, इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, सुरेश को गुड्स सोल्ड किया, कैसे, कैश में सोल्ड किया है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश आया, इस एंट्री में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कहां पे, टू सेल्स। कितना 12,600, 12,600। मनीष वाली एंट्री का अमाउंट कितना है, 10,000। ठीक है, चलिए ये हुआ। फिर आगे देखते हैं कहां कहां कैश आया। फिर एक एंट्री है क्या, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, इन नाम आया हुआ है, मतलब उधार क्रय, उधार विक्रय, उधार सेल्स, क्रेडिट सेल्स, इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं आ रहा है। नाम एंट्री क्या बनेगी, सुरेश डेबिट टू सेल्स, कुछ भी हो एंट्री बना लीजिए आप पहले, सबसे पहले जब तक एंट्री नहीं बनाएंगे तब तक चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले एंट्री बनाएंगे, तो उसमें कैश आएगा तो उस एंट्री को हम कैश अकाउंट में लेंगे, अदरवाइज हम उसको कैश अकाउंट में नहीं लेंगे। फिर बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी खरीदा, कैश में खरीदा, एंट्री क्या बनेगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश आया, रिकॉर्ड करेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी, क्या एंट्री हो जाएगी 8,000। ओके, फिर विड्रू कैश फॉर हिज ऑफिस फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने ऑफिस के लिए पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है बिजनेस का मालिक, तो एंट्री क्या बनेगी, बाय ड्रॉइंग, पोस्टिंग क्या होगी, बाय ड्रॉइंग, एंट्री क्या होगी 2,500 अमाउंट। ओके, फिर रेंट पेड किया, बाय रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, बना लीजिए बाय रेंट, बाय वेजेस 400, 450। ओके, पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को मैंने सैलरी दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय सैलरी कितना है 1200। रिसीव कमीशन, पैसा रिसीव कमीशन से थ्रू हुआ, क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, यानी टू कमीशन कितना 200। तो ये पूरी एक महीने की ट्रांजेक्शन्स कैश से रिलेटेड, कैश से जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे पूरे एक महीने के अंदर, वो मैंने इस लेजर अकाउंट के थ्रू क्या हुआ, पूरा कैश अकाउंट को सारे ट्रांजेक्शन मैंने यहां रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है ना, अब हमको निकालना है क्या, पांचवा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस। हम बैलेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कैश का, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगा देंगे, दोनों साइड का टोटल लगा देंगे। ठीक है ना, इस साइड का टोटल कर लेंगे, इस साइड का टोटल कर लेंगे। मान लीजिए इसका टोटल 13, 23 और 50 73 और 85,800। इधर का टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 85,800। ओके, इधर का टोटल देख लेते हैं, 20 से 26 8 34 और 8 42 42 7 49 और 52 और ये 54,050। तो ये देखिए 85,800 फिर 54,050। अब किस साइड का टोटल ज्यादा, ऑब्वियसली इस साइड का टोटल ज्यादा, डेबिट साइड का, यानी जितना पैसा आया है उसके कंपेयर में इतना पैसा खर्च हुआ है। ठीक है ना, विद इन मंथ 85,800 वी आर रिसीविंग एंड 54,050 वी आर पेइंग, मतलब कैश आउट गोइंग, कैश बिजनेस से निकल रहा है।
और इतना कैश आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें से कमी किधर है, डेफिशिएंसी इधर ही है, इतना किधर कितना कमी है, इसको लेस कर देंगे। तो लेस कर दीजिए 5, डायरेक्ट लेस कर देते हैं ना, कैसे है 0 5 7, यहां बचेगा 7 ओके, सॉरी 9 7 होना, ये 7 बचेगा सर, 7 5 4 1 और 8 में से 5 गया 3, 31,750। सही, ठीक है ना। 31,750 की क्या आ रही है, डेफिशिएंसी आ रही है इस साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बैलेंस गिर रहा है इधर गिर रहा है, कहां गिर रहा है, इस साइड गिर रहा है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे, ठीक है। मतलब जितना पैसा आ रहा है उतना उसके कंपेयर में इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं। तो यानी 31,750 का बैलेंस मेरे पास है। डेबिट बैलेंस, कैश एसेट अकाउंट, जितने भी एसेट्स होते हैं उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। मतलब 31,007 इतना बिजनेस करने के बाद, इतने खर्चे करने के बाद, इतना चीजें करने के बाद मेरे पास जो बैलेंस बच रहा है कैश का कितना, 31,750 बच रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सी डी, सी ऑब्लिक डी, सी ऑब्लिक डी का मतलब कैरिड डाउन होता है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कैरिड डाउन मतलब लाया गया, ठीक है ना, निकाल के लाया गया। तो बैलेंस क्या हुआ, 31,750। इस डिफरेंसिंग अमाउंट को, इस जो टोटल इधर का टोटल ज्यादा होगा तो इसमें से इसको घटा के यहाँ डिफरेंसिंग अमाउंट लिख देंगे, और इधर का टोटल ज्यादा होगा इधर का, तो हम जो कर रहे हैं टोटल लगाया पहले, उसमें से इसको घटा लिया और इतनी की कमी आ रही, तो ये डेफिशिएंसी अमाउंट हम यहाँ पे 31,750 बाई बैलेंस सीडी लिख के टोटल कर देंगे। टोटल को मतलब अंडरलाइन कर देंगे डबल लाइन से, और देख लीजिए फिर टोटल लगा, जो टोटल ज्यादा होगा वो टोटल दोनों साइड हम लिख देंगे। जैसे इधर का टोटल ज्यादा रहा 85,800 का टोटल यहाँ लिख देंगे, 85,800 का टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे। इधर मतलब जो टोटल ज्यादा होगा वो टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे। इस प्रकार हमने कैश का बैलेंस जान लिया 31,750। इक्की हमारे पास क्या है, 31,750 रुपए का बैलेंस है एक महीने का बिजनेस करने के बाद। तो ये है लेजर। इसी तरह हम सारे अकाउंट्स को बनाएंगे। अब ये टॉपिक, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है